Okay, let's start with the topic, range of logarithm function. Okay, and 1 minute. Okay, now the topic is range of logarithm function. So let's take log function as log, okay, a to the base b, and we know how to find the domain of logarithm function. We know this, and b should be also greater than 0, and b should not be equal to 1, right? So these are the sufficient and necessary condition for a log function to be defined, right? So what I have to do, we have to find the range of logarithm function. So while finding range of logarithm function, first I have to find the domain for the given log function, okay? And input of the log function may be quadratic or maybe another function, okay? And that's why I am telling first I have to find the domain, and for that domain this inside function will give some output values, and again that output will be act as input for the external log function, and that will give the range. It means for that values what will be the minimum and maximum value given by that log function, okay? So what I'm trying to explain you, let's take one example. वो क्या है, y equals to find the range of y equals to log x square minus 3x square minus 4x, right, plus 5 to the base e. So this is the question and we have to find the range of this. तो अगेन इसका डोमेन निकालेंगे. ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब इसका आर्गूमेंट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन 0. अब अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये क्या है 16. अगर हम इसको d निकालें, यहाँ पे d दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, वो अगर हम निकालें तो क्या होगा बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4ac. तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. So this is 60. So I will get 4 and this is 4. So I will get minus 44, right? And this minus 44 is nothing but less than 0. So here d is less than 0 for the given quadratic equation, and we know if for the given quadratic equation d is less than 0 and the coefficient of x squared, so here coefficient of x squared is 3 and that is greater than 0, then this whole expression is greater than 0 for all x belongs to R, right? So यहाँ से हम क्या बोलेंगे, therefore what I will tell here, I can conclude that 3x square minus 4x plus 5 should be greater than 0 for all x belongs to R. पूरे x के लिए, पूरे रियल नंबर x के लिए ये जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. क्यों? चूँकि इसका d लेस देन 0 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है. ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं कि अगर d लेस देन 0 आए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तब हमारा ध्यान जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है. अगर वो ग्रेटर देन 0 है देन दिस होल एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R. अगर यहीं पे ये 3 ना होता, -3 होता, सपोज मतलब 0 से छोटा होता, तब ये होल एक्सप्रेशन लेस देन 0 हो जाता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू R. सो दिस इज द केस. तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि ये जो लॉग फंक्शन है इसका डोमेन क्या निकला, एक्स बिलोंग्स टू R. ठीक है. नाउ दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज लॉग फंक्शन. तो पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालेंगे जो कि उस लॉग के लिए, इस लॉग के लिए डोमेन का काम करेगा. फिर उस डोमेन के लिए लॉग का ग्राफ मिनिमम टू मैक्स वैल्यू क्या देगा, दैट शुड बी द रेंज. तो इसका मतलब क्या है कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आई हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5. तो इसका रेंज क्या होता है ये हमें पता है, राइट? इसका रेंज क्या होता है, तो दिस इज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड वी नो द रेंज ऑफ दिस इज माइनस डी बाई 4a से इन्फिनिटी, माइनस डी अपॉन 4a, राइट, से इन्फिनिटी. अगेन द स्टूडेंट हु हैव पास्ड क्लास 12th एग्जाम, so they can easily understand this, right? So the range of this quadratic expression is minus d upon 4a से infinity, right? And here a is greater than 0 in this quadratic expression.
a is greater than 0, that's why its graph will be upward parabola, because here 3 is greater than 0. So for a greater than 0, a is nothing but the coefficient of x square. If this is greater than 0, then graph will be upward, and if a less than 0, then graph will be downward, open downward, and this is open upward. So this would be there, this is in quadratic, right? So that's why इसका रेंज क्या होगा, इस फंक्शन में ग्राफ ऐसे बनेगा तो इसका रेंज क्या होगा, नीचे -d/4 से देन इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ ये है तो मिनिमम किधर हो जाएगा, मिनिमम इधर है, वो -इन्फिनिटी है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है ये, और ये क्या है -d/4 है। तो इस केस में अगर रेंज मुझे मेरे से पूछे क्या होगा, तो यहाँ पे -इन्फिनिटी से -d/4 है, इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसमें रेंज ये हो जाएगा, जबकि इस वाले में रेंज क्या होगा ये, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब हमको पता है कि डी तो हम निकाल लिए, वो क्या है -44, तो -44, तो ये माइनस तो पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा 44/4a, 4 इंटू, और a क्या है, a है तुम्हारा 3, सो दिस इज 3 एंड दिस इज इन्फिनिटी, सो दिस विल बी इन्फिनिटी एंड दिस will come under here close bracket, so this will be included, right? Now this is 11, right? So 11/3 say infinity, so this is the range of the quadratic expression। ये this quadratic expression का range क्या हो गया ये, right? now अब this value will be act as डोमेन फॉर दिस लॉग फंक्शन, ठीक है। तो हम लॉग फंक्शन का अगर अब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो सिंपल है, सो एक मिनट, सो दिस विल बी ग्राफ एंड द ग्राफ विल बी दिस, और हमें पता है कि ये क्या है, ये है 1,0, और वैल्यू किस पे बोला है 11/3, सो डैट इज़ नथिंग बट 3 3 से 9, 3 पॉइंट समथिंग, तो हम यहाँ मान लेते हैं। सो दिस इज़ 11/3 एंड दिस इज़ इंक्लूडेड, सो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, ये किसके लिए है, b greater than 1 के लिए, जिसका बेस ग्रेटर देन हो, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, लॉग के अंदर इनपुट क्या है, लॉग 11/3, राइट, एंड टू द बेस e, तो यहाँ पे इस इनपुट के लिए आउटपुट क्या होगा, ये क्या वैल्यू देगा, log 11/3 टू द बेस e, ठीक है। और इन्फिनिटी के लिए क्या होगा, अगर मान लो ये इन्फिनिटी की तरफ जाए, ये x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये ग्राफ भी आगे बढ़ते जाएगा, राइट, ये ग्राफ भी आगे बढ़ते जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू की तरफ बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज क्या होगा, फ्रॉम दिस वैल्यू टू अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से रेंज मेरे पास क्या निकल गया है, देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू, रेंज क्या निकल गया है, log 11/3 टू द बेस e से इन्फिनिटी, सो दिस शुड बी द रेंज। अच्छा, इसमें क्या क्या था कि इस तरह के क्वेश्चन में जब भी लॉग फंक्शन का रेंज पूछे तो सबसे पहले हम लॉग फंक्शन का, उस पूरे फंक्शन का जो भी एक्सप्रेशन होगा, log inside log, in some question we also get log inside log, it means we have to satisfy all the conditions and from there we'll get some interval for x and that should be the domain of overall function. Now for that domain I will just find out the range of inside function, फिर जो रेंज आएगा वो बाहर वाले लॉग के लिए डोमेन हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 लॉग फंक्शन अंदर में है तो फिर उसका रेंज बाहर वाले के लिए लोगे डोमेन, फिर जो उसका फिर रेंज आया, सो जो फिर वो सबसे बाहर वाले लॉग के लिए डोमेन की तरह काम करेगा। फिर हम देखेंगे कि वो वैल्यू कहाँ से कहाँ ट्रेस आउट करेगा, मिनिमम टू मैक्स क्या होगा, जो भी मिनिमम टू मैक्स होगा वही रेंज हो जाएगा, जैसा हमने इस केस में किया, राइट। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, so next question is again find the range of the expression and that expression is
y इक्वल्स टू log, राइट, log टू द बेस 3 है, और इसके अंदर क्या है, अगेन log, और इसके इनसाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, राइट, और इसका बेस क्या है 1/2. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट, यही क्वेश्चन है. अब इसका हमें रेंज निकालना है. क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू लॉग, और लॉग के जो बाहर वाले लॉग के जो आर्गूमेंट है ये पूरा लॉग है, log x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 टू द बेस 1/2, एंड दिस होल comes under domain of this log function. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड डोमेन. तो डोमेन तो हमको अच्छे से पता है कि हम कैसे निकालते हैं, कंडीशंस लगाते जाओ. अब इस लॉग के लिए ये पूरा डोमेन इनपुट की तरह काम कर रहा है, आर्गूमेंट की तरह. सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से हम बोलेंगे log x स्क्वायर प्लस 4x, राइट, सो प्लस 4x प्लस 4 टू द बेस 1/2, and this should be greater than 0. Okay, now again this expression will be act as argument for this log function. So हम यहाँ से ये भी बोलेंगे and x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 should be also greater than 0. और बेस पे कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों बेस डिफाइंड है. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे. तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं. पहला वाला क्या है, log x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, राइट, एंड टू द बेस 1/2. ओके, एंड नाउ दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. अब ये जो बेस है ये 1/2 है, छोटा है. अब ये छोटे को जब हम उधर भेज देंगे, छोटा मतलब क्या, ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 के बीच में. और हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक लॉग में, इसे पहले वाले वीडियोज़ में, कि अगर बेस ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 और तब हम उसको इनइक्वालिटी में भेजेंगे उधर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. अगर ग्रेटर देन 1 है तो साइन चेंज नहीं होगा. एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इन प्रीवियस वीडियो, सो जस्ट गो थ्रू दैट. तो यहाँ पे 1/2 को अगर हम उधर भेजेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और उधर हम भेजेंगे तो क्या होगा, 1/2 की पावर 0 1, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 लेस देन 0. ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड दिस इज लेस देन 0. नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी. तो यहाँ से क्या हम बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस x प्लस 3 एंड डैट इज लेस देन 0. यहाँ से x अगर हम कॉमन लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और यहाँ अगर हम 1 कॉमन लें तो यहाँ भी x प्लस 3. तो फाइनली अब मैं लिख देता हूँ x प्लस 1, राइट, इज लेस देन 0. अब इसके रूट क्या है, वैसे तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में हम पढ़े थे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, बिटवीन द रूट्स एंड अवे फ्रॉम द रूट्स. तो वो हम नहीं लगा रहे, यहाँ पे हम पूरा सीधा सीधी कर रहे हैं. ये क्या है -3 और ये क्या है -1. अब अगर हम -1 से आगे जाएँ तो ये पूरा वैल्यू, राइट, क्या होगा, पॉजिटिव. सो दिस इज पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव. चाहिए क्या, निगेटिव, सो x बिलोंग्स टू, और इक्वालिटी है क्या, नहीं, सो ओपन ब्रैकेट. तो ये पहले वाला का हो गया. ठीक है, दूसरा वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, एंड दिस इज नथिंग बट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4x एंड प्लस b स्क्वायर दैट इज 4. अब ये स्क्वायर फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0. तो ये बात तो पक्का है, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, कुछ भी x डालोगे ये 0 से पॉजिटिव होगा. बट वन वैल्यू ऑफ x दैट इज -2, जहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और 0 पे इक्वलिटी नहीं है. तो इसलिए हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को सिर्फ दिक्कत है -2 पे, क्योंकि -2 पे मैं 0 हो जाऊंगा, जबकि 0 इंक्लूड नहीं है, राइट, इक्वलिटी साइन इज नॉट देयर. दैट्स वाई आई हैव टू remove -2 from the domain, right, for this inequality.
ऑफ कोर्स। नाउ ओवरऑल व्हाट शुड बी द डोमेन, ये -3 से -1 है और ये बोल रहा है कि पूरा रियल नंबर ले लो, बस -2 मत लो। तो -3 से -1 के अंदर -2 आया क्या, -2 तो इंक्लूड हो गया, यानी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ओवरऑल x बिलोंग्स टू क्या निकलेगा, -3 से -2 नहीं होना चाहिए तो -2 पे ब्रेक कर दो, यूनियन -2 से -1, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 से -1 और एक्सेप्ट यहाँ पे माइनस लगा के फिर -2 बाहर कर देते, क्योंकि -3 -1 में -2 आएगा, उसको हमने बाहर कर दिया। वैसे भी बोलो या ऐसे बोलो। तो यहाँ से ये जो x का इंटरवल आया, अब इस x के लिए ये ओवरऑल फंक्शन डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। उस x के लिए ये भी डिफाइंड है, ये लॉग फंक्शन भी डिफाइंड है, और फिर यहाँ से जो वैल्यू आएगा उस x के लिए, ठीक है, उस वैल्यू के लिए भी ये लॉग क्या होगा, डिफाइंड होगा, राइट। सो नाउ ये तो पता चल गया। अब हम इसका रेंज निकालते हैं। तो पहली बात, ये x² + 4x + 4, राइट, ये जो गिवन डोमेन है उसके लिए ये वाला वैल्यू, ये पूरा लॉग कहाँ से कहाँ जाएगा। तो ये 1/2 है, तो इसका हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये सीधी लाइन नहीं आ रही है, चलो रफ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यही ग्राफ है, दिस इज 1,0। और इस पूरे फंक्शन के लिए हमें डोमेन पता है, हम बस उसी x का वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे डोमेन क्या आया मेरे पास, डोमेन आया है मेरे पास -3 से -2 यूनियन -2 से -1। अब देखो यहाँ पे ये तो लॉग फंक्शन हो गया ये वाला। अब इस x के लिए ये क्वाड्रेटिक क्या रेंज देगा, ठीक है, वो यहाँ पे डिसाइड होगा। तो इसके ऊपर एक और ग्राफ बना लेते हैं क्वाड्रेटिक का, और क्वाड्रेटिक क्या है, ऐसे ही होगा अराउंड, चूँकि अपवर्ड पैरा वाला है, x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। सो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई जस्ट ड्रॉ ग्राफ लाइक दैट, और रियली में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रियली में तो हम ये भी देखेंगे कि वो स्क्वायर फंक्शन है या 2 रूट्स है या नहीं, या रिपीटेड रूट्स है। तो यहाँ पे जो x² + 4x + 4 है वो क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, दैट इज x + 2 का होल स्क्वायर। सो ये तो एक्सिस के ऊपर ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे हम तो जस्ट समझाने के लिए ड्रॉ किए थे कि अगर मान लिया स्क्वायर फंक्शन नहीं होगा, तो मतलब 2 रूट्स हैं, तो स्क्वायर फंक्शन है तो ये पक्का क्या होगा, और x + 2 का होल स्क्वायर है तो ये -2 पे इस तरह का ग्राफ बन रहा होगा, ठीक है। अब माइनस और वैल्यू क्या है, -3 से -2, तो यहाँ -3 यहाँ, और ये -2 से -1 तो -1। अब -3 से -2 और -2 से -1 अगर हम जाएंगे तो 3 पे वैल्यू क्या होगा, 3 पे वैल्यू क्या होगा, एक मिनट, 3 पे जो वैल्यू होगा वही होगा जो -1 पे होगा, यू कैन फाइंड दैट, एंड दैट इज़ 1, राइट। एंड -2 पे वैल्यू क्या है, 0। तो -3 से -2 और -2 से -1 जाने के क्रम में वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हुआ 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, ठीक है। ये अप्रोच करेगा, दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली वैल्यू, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है। तो वैल्यू क्या हो गया 0 to 1। अब इस 0 से जो 1 आया, राइट, यहाँ से जो 0 से 1 आया मेरे पास, ये 0 से जो 1 आया है, अब ये 0 से 1 जो रेंज आया है वो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन से आया है, राइट। कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से आया है 0 से 1 फॉर द गिवन डोमेन। अभी इस 0 से 1 के लिए ये लॉग वैल्यू क्या देगा, चूँकि इनपुट की तरह काम करेगा। तो 0 से 1 यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा 0, ठीक है, ये 0 और ये क्या है 1। तो अब 0 से 1 अगर हम जाएंगे तो 0 से अगर जैसे ही हम आगे जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगा +∞ को, और अगर हम 1 की तरफ जाएं, ठीक है, 1 की तरफ, तो वैल्यू क्या होगा 0 की तरफ जाएगा। जैसे ये 1 है, अगर हम इसकी तरफ बढ़ते जाएं तो वैल्यू क्या हो रहा है 0 की तरफ जा रहा है, चाहे तुम LHL से आओ या RHL से आओ। तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू क्या होगा,
वैल्यू होगा तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी। तो इस ये जो लॉग है वो क्या देगा, 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी, ये तुमको समझ में आना चाहिए। आई एम एक्सप्लेनिंग। हमने बोला कि 0 से इन्फिनिटी क्यों होगा, क्योंकि गिवन इनपुट के लिए, गिवन डोमेन के लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, राइट, ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू देगा 0 से 1। और फिर ये 0 से 1 के लिए ये लॉग वैल्यू क्या देगा, इन्फिनिटी से 0, दैट्स वाई 0 से इन्फिनिटी। अब ये 0 से इन्फिनिटी बाहर वाले फंक्शन, अब ये वाले फंक्शन, ये वाला, ठीक है, इसके लिए डोमेन की तरह काम करेगा, ठीक है। और इसका बेस क्या है 3, यानी इसका ग्राफ क्या होगा, सॉरी, इसका ग्राफ ऐसे होगा, क्योंकि बेस क्या है ग्रेटर देन 1, और ये क्या है, ये है 1,0, ठीक है। तो अब 0 से इन्फिनिटी, ये 0 है। अब अगर हम 0 से इन्फिनिटी जाए, ये 0 है, 0 से इन्फिनिटी जाए तो वैल्यू क्या होगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन का रेंज क्या हो गया, तो यहाँ से समझ में आ गया ना। 0 से इन्फिनिटी अगर हम जाएंगे तो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कहाँ जाएगा, -इन्फिनिटी को, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को। तो इस ओवरऑल फंक्शन का रेंज क्या निकला, रेंज निकला -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब r, ठीक है। तो ये निकल गया। सो दिस इज द रेंज ऑफ दिस लॉगरिथम फंक्शन, सेम फंडा है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। So minimize this, okay, so this is the function, right, we have to find the domain of range of this। तो सेम लॉजिक यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, tan इनवर्स एक्स्ट्रा आ गया है बस, बाकी सारा काम सेम है। क्या है सेम, कि इस लॉग को डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 5x² - 8x + 4 को सर ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। बेस के लिए कंडीशन लगाए क्या, नहीं, बेस डिफाइंड है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, b² क्या है, यहाँ पे पहले हम d निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है। तो ये 8² कितना होगा, 64 - 4ac, यानी 2480, एंड दिस इज प्लस ऑफ कोर्स, सो दिस विल बी 80। तो ये तो सर नेगेटिव हो गया, यहाँ से कितना आया 16, और यहाँ से कितना है 16, 10 में से 4 गया 6, और हाँ ठीक है, -16 दैट इज लेस देन 0। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 5, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये वाला, ये ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे x के वैल्यू के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसका हम, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा मतलब x बिलोंग्स टू r, यानी इस वाले लॉग फंक्शन का ये जो लॉग है अंदर, इसका डोमेन क्या निकला। अगर मैं इसकी बात करूं सिर्फ, तो यहाँ से डोमेन क्या निकला कि सर x बिलोंग्स टू r, क्योंकि कुछ भी x लोगे जो अंदर है वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू r क्या निकला, डोमेन, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। वो क्या है 5x², और 5 है ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ विल बी लुक लाइक, और जो मिनिमम वैल्यू होगा -d/4 है, और मैक्सिमम वैल्यू किधर को जाएगा, +इन्फिनिटी को। तो यहाँ से d मुझे पता ही है, तो -d/4 है क्या होगा, राइट, -d/4 है, ये क्या होगा, तो d क्या है मेरे पास -16, तो -16 अपॉन 4a, 4 × 5, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 16/20, तो यहाँ से 4 और 5, तो क्या आया मेरे पास 4/5। सो दिस इज दी -d/4a का वैल्यू। और ये रेंज क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा, रेंज होगा 4/5 से इन्फिनिटी, ठीक है, 4/5 से इन्फिनिटी। दिस वुड बी द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये जो रेंज निकला, ठीक है, ये रेंज, अब ये रेंज, ठीक है, इस लॉग के लिए डोमेन की तरह काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं डोमेन कि सर यहाँ पे 5x² - 8x + 4 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब है पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी x बिलोंग्स टू r इज द डोमेन फॉर दिस, राइट। एंड इफ x बिलोंग्स टू r इज द डोमेन, तो tan इनवर्स को भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है r,
तो tan इनवर्स के अंदर जैसे ये पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू इस tan इनवर्स के अंदर या तो नेगेटिव दे, पॉजिटिव दे, जीरो दे, कुछ भी दे, tan इनवर्स को कोई दिक्कत नहीं है, इट विल टेक ऑल वैल्यूज। तो यहाँ पे tan इनवर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं वाइल फाइंडिंग द डोमेन, क्योंकि tan इनवर्स को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो बोला कि मेरे अंदर कुछ भी दो। दिक्कत है लॉग फंक्शन को, तो वहाँ पे हम कंडीशंस लगा के x का वो वैल्यूज़ निकाले जिसके लिए ये लॉग डिफाइंड है, ठीक है। और उससे जो वैल्यू निकलेगा वो tan इनवर्स के लिए ऑफकोर्स डिफाइन होगा, चूँकि इसका तो आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मेरे पास निकला है 4/5 से इन्फिनिटी, अब इस लॉग के लिए डोमेन की तरह काम करेगा। अब ये जो लॉग है इसका क्या था, बेस बड़ा था ना 5/4, यस। सो ग्राफ विल लुक लाइक, और कितना बार बोले, सो दिस इज 1,0 एंड दिस विल गो ऑन, राइट। अब क्या है 4/5 से इन्फिनिटी, एंड 4/5 इज व्हाट, 0 पॉइंट समथिंग, राइट, 0.8 समथिंग। तो 4/5 क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा निगेटिव में होगा। तो कैसे होगा, तो 4/5 इज इंक्लूडेड एंड दिस ग्राफ इज कंटिन्यूस एंड स्टेडली इंक्रीजिंग, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू डायरेक्टली। तो यहाँ से ln क्या होगा, लॉग, वहाँ पे बेस क्या था 5/4, और यहाँ पे आर्गूमेंट क्या है 4/5। तो यहाँ से 5/4 को हम लिख सकते हैं 4/5 मतलब log 4/5, और इस बेस को हम लिख सकते हैं 4/5 टू दी पावर -1। तो ये ओवरऑल क्या निकल के आएगा, ये जो बेस का पावर होता है वो क्या होता है 1/ बेस का पावर, यानी 1/-1, एंड ये क्या हो जाएगा log, एक मिनट, हाँ, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4/5 टू दी बेस 4/5, और ये क्या होता है, बेस अगर सेम हो, आर्गूमेंट सेम हो, तो वैल्यू क्या होता है -1, राइट। तो -1, और इन्फिनिटी के लिए वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ से जो log का फंक्शन है उसका रेंज क्या निकला, वहाँ से निकला क्या, फॉर -1 से, सो दिस विल बी इंक्लूडेड से इन्फिनिटी, ठीक है। -1 से इन्फिनिटी इज द रेंज ऑफ द गिवन लॉग फंक्शन फॉर द गिवन डोमेन, ठीक है। अब ये जो रेंज निकला है -1 से इन्फिनिटी, वो tan इनवर्स के लिए डोमेन की तरह काम करेगा। तो tan इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, tan इनवर्स का ग्राफ तुम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, ये होता है तुम्हारा y = π/2, ठीक है। और ये जो होता है, ठीक है, ये होता है y = -π/2, और tan के इनपुट में, tan इनवर्स के इनपुट में कभी भी π/2 और -π/2 नहीं हो सकता, इसलिए जो इसका ग्राफ होगा वो हमेशा π/2 को अप्रोच करेगा, बट इट विल नॉट टच। सिमिलरली यहाँ भी वही होगा, राइट। और इसको हमने x एक्सिस माना है, और ये y, ये तो पता है। अब इसके लिए क्या है, ये भी कंटिन्यूस है और स्टिल इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे -1 है, राइट। तो -1 पे वैल्यू क्या होगा tan का, हम डाल सकते हैं डायरेक्टली। और इन्फिनिटी के लिए वैल्यू क्या होगा, तो चलो -1 पे वैल्यू क्या होगा, इंक्लूड है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं tan इनवर्स -1, ये क्या होगा -tan इनवर्स 1। तो ये मेरे पास क्या निकला -π/4, ठीक है। और अगर इन्फिनिटी है, अगर वैल्यू x इन्फिनिटी की तरफ जाए, ठीक है, अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाए, तो ये जो ग्राफ है ये π/2 को अप्रोच करेगा, मतलब π/2 की तरफ टच होने का कोशिश करेगा, बट एग्जैक्टली इट विल नॉट टच। इसका मतलब है कि अगर x में इन्फिनिटी की तरफ जाऊँ तो इसका वैल्यू π/2 से बड़ा नहीं हो सकता, π/2 को हमेशा अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा π/2 टूवर्ड्स π/2, तो इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से रेंज क्या निकला, यहाँ से रेंज निकला कि सर -π/4 इंक्लूड है, तो -π/4 इंक्लूड कर लो। और सर अगर x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये ग्राफ कहाँ को जाएगा, π/2 को, सो π/2 ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं,
तो विच ऑप्शन इज देयर, बी, तो यही आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रेंज ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, ऐसे निकालेंगे। ओके, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन यू कैन जस्ट सॉल्व फ्रॉम योर बुक or any material. You have to follow the same procedure, right? In next video I will come up with the new lesson, so please like, share and subscribe my YouTube channel so that I could make more and more videos. Okay, so stay happy, stay awesome. Kiss for you.